Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to understand the process of CMAT form filling. It is one of the easiest forms which I have filled ever. Okay, you don't need to have your caste certificate. You don't need to have your income certificate. Anything over here. Okay, it is one of the easiest form. Okay, the step-by-step process will be provided to you, and the checklist for the exam is also provided in this video. We are starting with a CMAT crash course. You can connect with us on the numbers given in the description of the video. We have regularly, we'll be providing you online sessions. Then you will have minimum number of students in the batch. After your CMAT exam, we'll be training you for VAT PI as well. Books will be provided to you, mobile app, national level test series, one-on-one analysis, exam-specific workshops, doubt-solving sessions, GK videos, all important updates on YouTube, and all of this in the lowest fee in the industry. Connect with us on the number given in the description of the video. Okay, we are expecting that the CMAT exam will be in the first week of April. First week of April. Okay, just like in last year, it was conducted on 9th of April. ये साल भी उसी टाइम पे रहेगा. ठीक है. Then we are also training students for general awareness. So हमारे monthly general awareness videos are uploaded on our YouTube channel. वहाँ पे हम MCQ format में आपको general awareness पढ़ाते हैं. तो you can check the playlist of general awareness or current affairs on our YouTube channel. Very soon we'll be starting with I&E sessions. We'll be uploading innovation and entrepreneurship sessions on our YouTube channel. Okay, I&E is going to be an important part. As soon as the paper pattern is released, we'll be starting with the I&E videos as well. So stay tuned to this channel for I&E videos, innovation and entrepreneurship. Total, we are planning to upload 10 videos. Okay, and these videos will help you prepare for I&E right from the scratch to the advanced level. Complete syllabus will be covered in this. Okay. Now, coming back to the form filling, the things that you need to have with you is photo in the range of 100 KB to 200 KB and signature in the files size of the range of 3 KB to 30 KB. Then you need to have your 10th, 12th and graduation mark sheets with you. Only the hard copy is needed. You don't have to upload it anywhere. As I told you, बहुत ही easy form filling process है. So you will have to visit this website cmat.nta.nic.in. Once you visit there, there will be a link for registration for CMAT 2023. You click on that. फिर registration link for CMAT 23. You click on that. ऐसा पेज आएगा. ऐसा पेज आने के बाद here you don't have to go on sign in, है ना. First आपको new user registration करना होगा. Okay, new user registration you will have to do here. Okay, once you click on new user registration, ऐसा कुछ तो आएगा पूरा आपका कितनी फॉर्म की फीस है, आपको बुलेटिन डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है तो that will be available here. Exam fees, this is the exam fees. Only general engineering, नहीं, general males have 2000 rupees का fees. बाकी female, third gender and category students, they have the application fee of 1000 rupees. Okay. Now, once you click on this checkbox, click on the proceed button. यहाँ पे ऐसा आपका सब आएगा. फिर कैंडिडेट नेम लिखोगे आप यहाँ पे. वन सेकेंड, है ना. कैंडिडेट नेम, आपका नाम आपसे बेटर और कौन जानेगा. फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख दोगे, जेंडर लिख दोगे, आइडेंटिटी टाइप की आधार देना है कि पैन देना है कि ड्राइविंग लाइसेंस देना है, वो लिखना है. आइडेंटिटी का नंबर लिखना है. वंस दैट इज डन, आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है या फिर प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखोगे, है ना. एड्रेस कौन से सिटी में, कौन से इसमें, पिन कोड विन कोड लिखोगे. पोस्ट दैट आपका परमानेंट एड्रेस, इफ योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज योर प्रेजेंट एड्रेस, बहुत अच्छा, नहीं तो परमानेंट एड्रेस लिख दोगे यहाँ पे. यू विल चूज योर पासवर्ड. पासवर्ड का वो कंडीशंस दे रखी है, 8 से 13 कैरेक्टर्स, एक कैपिटल लेटर, कम से कम एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक सिंबल एंड कम से कम एक डिजिट, ये रहना ही चाहिए.
है ना, तो वो कर देना। एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर दे देना। ठीक है, ये पिन डालोगे, आगे बढ़ जाएगी। वंस यू आर डन विद दैट, फिर आपका, if you want to edit your registration form, you can do that. Okay, edit your registration, you can do that. Okay, if you don't want to do that, आपका ये ऐसा आएगा, आपका नाम सही है क्या, ऊपर एक बहुत बड़ा फॉर्म रहेगा, उसमें सारे आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स रहेंगे। वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आपका नाम सही है क्या, फादर्स नेम सही है क्या, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, सब सही है तो बहुत सही। यू विल क्लिक ऑन सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अगर कुछ आपने गलती से गड़बड़ कर दी तो फिर से एडिट पे चले जाना। नेक्स्ट थिंग इज, वंस यू आर डन विद दैट, फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एसएमएस पे आएगा, एंड पासवर्ड तो आपको पता ही है। वंस यू क्लिक ऑन दैट, यू विल हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आपने रजिस्ट्रेशन भर दिया है, अभी एप्लीकेशन करोगे, फिर फीस पे करोगे, तो सीधा यहाँ पे जाने का, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करने का। यहाँ पे आपके क्या क्या फिल करना है, आपको पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड फाइनल सबमिट। इतना बेसिक सा तो चीजें है। ठीक है, तो यू राइट इन योर पर्सनल डिटेल्स, यू राइट अबाउट योर नेशनैलिटी, स्टेट ऑफ रेसिडेंस, कैटेगरी। नाउ वंस यू राइट द कैटेगरी, they are just asking you whether you are SC or ST or OBC or general or EWS, that's it, है ना। I have clicked on each and every of those categories. There is no edit field over there. Okay, there is no edit field over there. Okay, you just have to mention कि आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, आपको अगर आप ओबीसी लिखोगे तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा, ऐसा भी नहीं है। एससी सर्टिफिकेट, एससी के ऊपर लिखोगे तो एससी सर्टिफिकेट का आपको नंबर डालना होगा, कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर कैटेगरी। ठीक है, फिर हमको लगा कि यार आगे जाके शायद अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, तब देखेंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी का, इफ यू आर, इफ यू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो आप यस पे क्लिक करोगे, एंड विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज देयर, यू विल हैव टू मेंशन दैट। ओके, डायबिटिक हो या ना हो वो लिखना है। एनुअल इनकम ऑफ योर फैमिली, अभी एनुअल इनकम ऑफ योर फैमिली इज गिवन टू यू इन द टर्म, इन रेंज। ठीक है ना, मतलब आपको 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 4 लाख क्या एनुअल इनकम है वो लिखना है। सिक्योरिटी पिन डालना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है, देन दिस इज अबाउट योर आधार डिटेल्स। तो आई वॉलंटरी एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर टू यूज, it will be used to establish my identity for common management aptitude test। एक तो ये एक ऑप्शन है आपके पास, या फिर आई एम नॉट विलिंग टू शेयर माई आधार, ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, अभी वॉट एवर मे बी योर रीजन, जिसके हिसाब से आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप वैसा कर दो, है ना। आई हैव चोजन दिस, दैट आई वॉलंटरी एग्री टू शेयर माई आधार। ओके, माई इंफॉर्मेशन ऑन आधार इज नॉट सेम एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो होना ही नहीं चाहिए, है ना, बराबर आधार के हिसाब से ही डालो। ठीक है, देन यू एंटर योर आधार नंबर, फिर कंफर्म करो, यहाँ पे केस सिक्योरिटी पिन डालो, आगे बढ़ जाओ। once that is done, you have to select the cities that you want to take your exam into, है ना। So I am from Pune, so I was thinking of writing this exam from these cities। Okay, I am not going to write this CMAT exam, I am just filling the form for you guys। Okay, then once that is done, then your father's occupation, father's qualification, mother's occupation, mother's qualification, that you have to mention over here। ठीक है, एंड आपकी एग्जाम सिटीज भी आ गई। ठीक है, देन योर 10th इक्विवेलेंट, दिस इज वेयर यू नीड योर 10th मार्कशीट। 10th में आप पास हुए कि नहीं हुए। ठीक है, फिर आप, ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, 10th इक्विवेलेंट, कौन से बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है, आईएससी बोर्ड से किया है, स्टेट बोर्ड से किया है। अभी स्टेट बोर्ड भी कौन सा स्टेट बोर्ड है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, है ना। आपको परसेंटेज फॉर्मेट में है या सीजीपीए फॉर्मेट में है, दैट विल बी, दीज आर द टू ऑप्शंस हियर। तो अभी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव सीजीपीए फॉर्मेट, तो जिस भी फॉर्मेट में रहेगा वो फॉर्मेट में आपको लेना है। आपके टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन एंड परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे लिख देने हैं। सेम गोज विथ 12th स्टैंडर्ड, है ना, वही पास हुए कि नहीं हुए, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से बोर्ड से किया है, कितने परसेंटेज मार्क्स है, यही सब लिखना है। इफ यू हैव सीजीपीए, यू विल राइट सीजीपीए। देन
this is for your graduate qualification details. Either you have passed your graduation or you are appearing for your graduation. Okay. So year of passing और year of appearing है ना, मतलब last year of your graduation ही आपको देना है. B.Tech आपका कोई कौन सा डिग्री है, कौन से यूनिवर्सिटी से यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, वो लिखना है परसेंटेज फॉर्मेट में. आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड percentage marks, that is what you have to write here. Okay, if you write appearing over here, this column or this row is not going to be asked to you. ठीक है ना, आपको appearing वाले केस में your year of appearing can be maximum 2023. Okay, your year of appearing can be maximum 2023. 2024 में अगर आप पास होने वाले हो तो you are not eligible for the exam. Those candidates who are still in second last year of their education or second last year of their graduation and are willing to write the CMAT exam, guys, you are not eligible for it. I would recommend that don't write the exam, क्योंकि वो unnecessary आप एग्जाम तो दे दोगे, बट एग्जाम के बाद नेक्स्ट ईयर जब आप एक्चुअली एलिजिबल रहोगे तब पकड़े गए ना तो दिक्कत हो जाएगी. तो ऐसे गोरख धंधे नहीं करने हैं अपने को, ईमानदारी से. इफ यू आर नॉट एलिजिबल, नॉट यू आर नॉट एलिजिबल. Guys who have just started their graduation or they are in the second last year of your graduation, आप eligible नहीं हो तो एग्जाम मत दो. ठीक है. Then you write your security pin. Then you move forward, you upload your photograph and signature. That's it. है ना. I was wondering, I have deliberately put my category as OBC. Any which ways I am not going to go and write the exam, है ना. So I thought कि चलो OBC भर के रखते हैं. ठीक है. तो ओबीसी के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फिर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा. ऑल दीज थिंग्स विल बी नीडेड. आई थॉट आई माइट हैव टू अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स, बट कुछ नहीं है ना. मेरे को सिर्फ फोटो एंड सिग्नेचर वी हैव टू अपलोड. एंटर योर सिक्योरिटी पिन एंड सेव एंड नेक्स्ट. दैट्स इट. नथिंग एल्स वी हैव टू अपलोड. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग हियर इजीएस्ट फॉर्म आई हैव एवर फिल्ड, है ना. 10 मिनट में भर दिया था. ठीक है. देन अगेन द कंप्लीट वेरिफिकेशन नीड्स टू बी डन. आपका नाम सही है क्या, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल्स, एग्जैक्ट योर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के वो चीजें सही है क्या, वो सब देखना है. ठीक है. नथिंग हैज टू बी अपलोडेड. देन यू क्लिक ऑन आई एग्री, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. दैट्स इट. Once you do that, as I told you, I have chosen OBC, so I had to pay 1,000 rupees, which I have not paid, क्योंकि मैं एग्जाम ही नहीं देने वाला हूँ तो क्यों 1,000 रुपये बर्बाद कर. ठीक है ना. So then this is my application number. Edit your application. No, नहीं एडिट का मतलब सब कुछ सही था, तो फिर यहाँ पे आगे जाके your email you have to verify. Once you click on this, एक email पे OTP आएगा. ये OTP है ईमेल का. ये OTP उठाना है, ये यहाँ पे जाके आपको डालना है ना. वो OTP ईमेल के OTP के जगह पे जाके आपको डालना है. This mail is you are going to get it in your registered email ID. जिस email ID से अपने अभी रजिस्टर किया उसके ऊपर आपको ये मेल आने वाला है. ठीक है. Then access of payment, there is only one method of payment, that is online payment. जो DD वगैरह का पार्ट था वो नहीं है. वही आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर सब रहेगा. देन 1,000 rupees इज द एप्लीकेशन फी. इसके आगे जो एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, जैसा आप अमेजोन से कोई सामान मंगाते हो वैसा नॉर्मल सा एप्लीकेशन प्रोसेस है. आप SBI का या HDFC का कोई भी पेमेंट गेटवे लेके यू कैन प्रोसीड विद द प्रोसेस. आई हैव नॉट डन द फर्दर प्रोसेस हियर आफ्टर, क्योंकि मेरे को पेमेंट नहीं करना था. बट इसके आगे का पेमेंट का प्रोसेस इज नॉर्मल ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा. ठीक है. एंड दिस इज डन. यू आर डन विथ योर एप्लीकेशन. ओके. So if you have any doubt regarding the application, comment down on the comment section. We'll try our best to answer your queries. है ना. बहुत ही इजी है. अगर आप पूरे स्टेप्स फॉलो करोगे तो फिर कुछ डाउट आना नहीं चाहिए. बट अगर डाउट आता है कमेंट्स में डालो, ट्राई करेंगे क्लियर करने का. You can also visit our website tarkashastra.co.in. Thank you so much. Jai Hind.